Hello students. Students, as you know that in the last part we have started a new chapter, that is chapter number 9, sequence and series. Okay. In that part student, I told you about sequence and series, and based upon sequence and series we have solved few questions. Okay. I also told you one special type of series that is known as Fibonacci series. Okay. And I also told you how to write Fibonacci series. Okay. So that much thing we had covered in the first part of this chapter. Okay. So in this part student, we will start a new topic which is arithmetic progression, which is also known as AP. Okay. Student, this AP you have already studied in class 10th. Okay. So let me remind you the concept of AP. AP is the sequence. Okay. AP is the sequence because in the sequence we write first term, second term, third term and so on. Similarly, in an AP, it is also an sequence in which the difference of a term and the previous term is constant throughout the series. Okay. And that difference is known as common difference, and the first term of the AP is denoted by small a. That much thing you already know. Okay. So whenever you have to recognize a particular sequence are in AP or not, so what you will do, you will take any two term of the sequence and you have to take the difference of that two term. How? That term minus previous term. Okay. Whenever you have to find the difference of two term, so you will subtract like this, second term minus previous term. So by doing that you can find the difference, and if the difference is constant throughout the series, so that sequence is known as arithmetic progression. Okay. So the first term of the AP is denoted by small a and the common difference is denoted by small d. So I will start from there only. So what I will write, let first term of an AP is a and common difference is D. Common difference is D. Okay. First term is A and common difference is D. So whenever you have to write an AP, so the standard AP can be represented like this. Okay. So the standard AP is a sequence also. Standard AP with first term A and common difference D can be written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Okay? And so on. So whenever you have to write a standard AP with the first term A and the common difference D, so that AP can be written as A, comma A plus D, then A plus 2D, A plus 3D and so on. Okay. So with the basis of that standard AP, we can find the nth term of the AP. Okay. You already know what is the nth term of an AP. So with the help of this standard AP, we can write the formula of nth term of the AP. So nth term of an AP is an is equal to A plus n minus 1D. Okay. Nth term of an AP can be written as an, because we know now first term is A1, second term is A2, third term is A3, or in place of A1, A2, A3 you can use T1, T2, T3 also. Okay. So the nth term can be represented by either an और Tn. ठीक है. An भी लिख सकते हो आप और Tn भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब nth term ही होता है. And the formula of nth term is that A plus n minus 1D. Okay. This thing you already know. One more thing, students,
you all having the doubt how to find d, so the formula of d is a k plus 1 minus a k. ठीक है, a k plus 1 minus a k. Like this we find that common difference. Okay, suppose there is a sequence is given, so with the help of this formula, suppose the sequence is like that 1 3 5 7. So common difference second term minus फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया गया है ए के प्लस 1 माइनस ए के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a2 माइनस a1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a3 माइनस a2 आ जाएगा, और AP में हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम. सो ये फॉर्मूला है d का. ठीक है, दिस यू ऑलरेडी नो, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, जहां पर a इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of term, d is the common difference. Okay, and this nth term, generally whenever we write this formula, so the meaning of this formula is that nth term from the starting, nth term from the starting. So whenever you have to write the nth term from the last, so there is one more formula, nth term from the last is equal to an equal to l minus n minus 1 d. ठीक है, जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट. सो इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज an इक्वल टू l minus n minus 1 d. ठीक है, l इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म. ओके, so this is the basic description about AP. AP is a sequence in which the difference of a term and the previous term is constant. First term is denoted by A, common difference is denoted by D, and whenever you have to write the standard AP with the first term A and common difference D, so that AP can be written as A plus G, A plus 3D and so on. ठीक है, so this much information you already know about AP. So please note down this, student. Now some property of AP we should study, student. This is important and this you have not studied in class 10. ठीक है, some properties of AP. You can write as a note wise. Okay, I'm not writing all the properties on the board. I'm explaining it. Okay, so properties of AP. Our heading will be properties of AP. Properties of an AP. ठीक है, properties of an AP. What is the properties of an AP? So there are certain properties of AP. The first property is that if we will add any term, means if you are adding same term in all the terms of the AP, then whatever terms we will get, that will always be in AP. Okay, so you can see in your book also, student, in the page number 181, I am telling from that only. If a constant is added to each of the term of AP, the resulting sequence is also an AP. जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी. Suppose you are writing an AP like this, A1 3 5 7, okay, and so on. ठीक है, these are in AP, and suppose you are adding a constant term in each term of the AP. जैसे एक AP मैंने लिखा और इस AP की हर एक टर्म में मैं एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहा हूं. ठीक है, तो जो भी सीक्वेंस मिलेगा मुझे वो भी क्या होगा, AP में. जैसे मान लो ये AP में है, R in AP, and suppose I'm adding 2 in each term of an AP. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी हर एक टर्म में 2 ऐड कर दे रहा हूं. तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, 1 plus 2, सेकेंड टर्म बन जाएगा 3 plus 2, थर्ड टर्म विल बी 5 plus 2, फोर्थ टर्म विल बी 7 plus 2 एंड सो ऑन. ठीक है,
So now you can see first term will be 3, then 5, then 7, then 9 and so on. So you can see now, you can see whatever sequence we are getting after adding the constant, that sequence will always be in AP. So this is the property number first. अगर किसी AP की हर एक टर्म में कोई मान लो कोई AP है और उसके हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करने के बाद भी जो सीक्वेंस मिल रहा है वो भी क्या होगा, AP में. तो सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ सेकेंड इज बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जैसे फॉर अगेन मैं फिर से वही AP लिख रहा हूं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, सपोज दिस आर इन AP. ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं. पहले केस में मैंने क्या ऐड किया था, 2. पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी AP के हर एक टर्म में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो जो भी सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, AP में ही होगा. दूसरा क्या है कि अगर किसी AP के हर एक टर्म में से कोई कांस्टेंट माइनस कर दिया जाए तब भी जो AP मिलेगा वो क्या होगा, तो तब भी जो सीक्वेंस मिला होगा वो क्या होगा, AP में ही होगा. चाहे ऐड करो हर एक टर्म में, चाहे माइनस करो हर एक टर्म में, उन दोनों से जो सीक्वेंस मिलता है वो भी AP में ही होगा. तो देखो ये एक AP है और इसमें से मान लो मैं कोई भी नंबर माइनस कर रहा हूं, कोई भी कांस्टेंट माइनस कर रहा हूं. सो आई एम subtracting 1 in each term of the AP. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सेकंड वाली प्रॉपर्टी में कि हर एक AP दिया हुआ था, उस AP के हर एक टर्म में से मैं कोई 1 माइनस कर रहा हूं, सब में से, सारे टर्म में से मैं 1 माइनस कर रहा हूं. तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद 1 माइनस 1. दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 1 होगा. ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1. देन क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 विल बी 0, 3 माइनस 1 विल बी 2, 5 माइनस 1 विल बी 4, 7 माइनस 1 विल बी 6. सो सी, एक AP दी हुई थी और उस AP में से क्या किया आपने, हर एक टर्म में से एक कांस्टेंट माइनस कर दिया. तो माइनस करने के बाद एक सीक्वेंस मिला 0, 2, 4, 6. सो जो भी सीक्वेंस मिलेगा माइनस करने के बाद भी वो भी क्या होगा, R in AP. सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड. चाहे AP के हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करो, चाहे AP के हर एक टर्म में कांस्टेंट माइनस करो, उन दोनों केस में जो सीक्वेंस हमको नई सीक्वेंस मिलता है वो दोनों ही क्या होंगे, AP में ही होंगे. उससे AP में कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर कोई AP दिया हुआ है, उस AP के हर एक टर्म में कोई भी टर्म ऐड कर रहे हो, कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी AP में ही होगा. चाहे अगर कोई AP दिया हो और उसके AP में इसके हर एक टर्म में से कोई चीज माइनस कर रहे हो, तब भी जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, AP में ही होगा. ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड. नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. First one was based on the addition of a constant. Second one was based on the subtraction of the constant. Okay. Subtraction of the constant. अब देखो मैं थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं. थर्ड में क्या है कि अगर कोई AP है और अगर किसी AP के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी जो सीक्वेंस हमें मिलेगा वो भी AP में ही होगा. जैसे कि इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइंग इन ईच टर्म ऑफ द AP, सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑलवेज बी इन AP. जैसे कि एक AP दिया हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस AP के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग 2 in each term of the AP. ठीक है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस AP के हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. आप पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो. इट्स योर विश. ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर कांस्टेंट ओनली. So if an AP is given and you are multiplying a constant in each term of the AP, so the resulting sequence will always be in AP. अब देखो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहला टर्म 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14. ठीक है, तो देखो
जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिला दैट इज 2, 6, 10, 14, क्या ये एपी में है? यस, दे विल ऑलवेज बी इन एपी, सो दे विल ऑलवेज बी इन एपी, सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑलवेज बी इन एपी। तो चाहे ऐड करो कोई नंबर हर एक टर्म में से, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, तब भी हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो एपी में ही होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3rd, एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज बेस्ड ऑन द डिवीजन। Property number 4 is based on the division. If an AP is given and you are dividing the each term of the AP by a constant, so the resulting sequence will also be in AP. So same example we can take. तो मान लो AP है 1, 3, 5, 7 are in AP, and what I am doing, I am dividing each term of the AP by 2. Divide each term by 2. कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इट्स योर विश। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 1/2, सेकंड टर्म विल बी 3/2, थर्ड टर्म विल बी 5/2 एंड फोर्थ टर्म विल बी 7/2। सो वट एवर सीक्वेंस वी विल गेट, दिस सीक्वेंस विल ऑल्सो बी इन एपी, ठीक है। एक चीज याद रखना, डिवाइड के केस में 0 को छोड़ के आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपको जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो एपी में ही होगा, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कोई एपी है तो अगर एपी के हर एक टर्म में कुछ नंबर ऐड कर दो, या हर एक टर्म में कुछ नंबर माइनस कर दो, या हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, या हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो उन सभी केस में जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में ही होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कुछ भी एग्जांपल्स लेके। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ओके। सो प्लीज नोट डाउन इट, because why I am telling you so quickly, because these things you have already studied in class 10th and there is not so much new, so that's why you can understand, okay. Now one more formula was there student, this is also the revision of your previous knowledge. One more formula was there for AP, sum of first n terms of an AP, ठीक है, sum of first n terms of an AP. So what is the formula for that? So that formula was Sn equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. This you know, the sum of first n terms of an AP, or sometimes we use this formula also, Sn equal to n by 2 in bracket a plus l, where a is the first term, l is the last term. So these two formula is used for the calculating the sum of first n terms. One more formula was there, an equal to Sn minus Sn minus 1, means this formula I told you in the class 10th, the nth term is equal to the sum of first n terms minus sum of first n minus 1 terms, okay. So these formula you have already used in the previous classes, and I also told you the proof of this formula, so there is no need to worry, okay. And proof is not asking the examination, so you should use the formula. Ki what is the formula of sum of first n terms? There are two formula. The first formula is n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d, and second one is Sn equal to n by 2 in bracket a plus l, ठीक है. And this formula is also used, sometimes comes in the examination, that what is the relationship between nth term, sum of first n terms, and sum of first n minus 1 term. So an equal to Sn minus 1, okay. This is a theory class. In the next class we will solve question based on the AP, okay. Now I hope it is clear to you. Arithmetic mean, okay. Arithmetic mean, this thing you also studied in class 10th.
arithmetic mean. Suppose student there are two numbers. Let there are two numbers such as A and B, where B is greater than A. So a arithmetic mean between them is AM is stand for arithmetic mean is equal to A plus B by 2. And this how it comes, I already told you how it comes. Okay, सपोज आपको दो नंबर है, आपके पास दो नंबर है और आपको उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन बताना है, तो करना क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और ये आता कैसे है, मान लो इसका प्रूफ में बता देता हूं। मान लो एक नंबर है a, एक नंबर है b, और इनके बीच में आपको एक अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मान लो अरिथमेटिक मीन ये होगा am। अब एक बात बताओ, अरिथमेटिक मीन है, इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों नंबर एपी में ही होंगे। दिस ऑल थ्री नंबर विल बी इन एपी। ठीक है, सो अगर ये एपी में है स्टूडेंट, तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इन दोनों को लेंगे जब, तो कॉमन डिफरेंस आएगा am माइनस a, और जब इन दोनों को लेंगे तो आएगा कॉमन डिफरेंस b माइनस am। ठीक है, am को एक पास ले जाइए, तो am प्लस am इक्वल टू b प्लस a। सो ट्वाइस ऑफ am will be equal to a plus b, so am will be equal to a plus b divided by 2. So that's why this formula is am is equal to a plus b by 2. इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है सिंबल वाइज। So a is less than a plus b by 2 is less than b। ठीक है, क्योंकि आपको a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन बताना था, तो जो अरिथमेटिक मीन आप निकालोगे दैट विल बी ग्रेटर देन वन नंबर एंड दैट विल बी लेस देन वन नंबर। ओके, एक नंबर से बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन और दूसरे नंबर से छोटा होगा। तो किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, कब, जब बी ए से बड़ा है तो। और अगर यहाँ पे कंडीशन में चेंज कर देता, अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे बी होता, तो मतलब कि वो बी से बड़ा होता और ए से छोटा होता। ठीक है, अब खुद देखो, ए है, फिर ए एम है, फिर बी है, मतलब कि पहले सबसे छोटा ए, फिर ए एम, देन बी, और these all three will be in AP। ठीक है, these all three will be in AP। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हुआ a प्लस बी बाई 2। आप a ही लिख लो, अरिथमेटिक मीन को आप a से लिख लो, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, वेयर a इज अरिथमेटिक मीन। नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। जब आपको दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, एक अरिथमेटिक मीन, तो आप इस नंबर के इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हो। अगर दो नंबर है आपके पास 5 और 6, और आपको 5 और 6 के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक विल बी इक्वल टू 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब दो नंबर के बीच में आपको एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता है। ठीक है, now the next heading will be calculation of an arithmetic mean between a and b। ठीक है, यहां पे तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे आप जब आपको दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। मान लो आपको बहुत सारे निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला अब हम पढ़ेंगे। ठीक है,
arithmetic mean and arithmetic mean between two numbers. Okay, between two numbers. This is the heading. Suppose you have to find out the n arithmetic mean. n का मतलब आपको दो नंबर के बीच में 5 arithmetic mean निकालना है, 6 arithmetic mean निकालना है, 10 arithmetic mean निकालना है. तो उसी तरह अगर n arithmetic mean निकालना होंगे दो नंबर के बीच में से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट a1 a2 a3 and so on an be the n arithmetic mean between two numbers a and b where b is greater than a. ठीक है, मान लिया कि a और b के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन है? n अरिथमेटिक है, एंड दे आर a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an. ठीक है, सो अगर आप दो नंबर के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन को आप इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करना है, इनके बीच में बताना या इंसर्ट करना बात एक ही है. सपोज आपको दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तो वो सारे नंबर आपस में एपी में ही होंगे. जैसे कि a और b है दो नंबर, और इनके बीच में आपको कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? a1, मतलब कि फाइंड करना है a2 a3 a4 एंड सो ऑन, कहां तक? an. यही तो होगा कि दो नंबर के बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया, तो जो भी सीक्वेंस आपको मिलेगा ना, वो सब एपी में ही होगा. जैसे मैंने बताया था कि दो नंबर के बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन ऐड करते हो, इंसर्ट करते हो, जैसे कि बताया था मैंने a am एंड b, तो ये तीनों एपी में थे ना, तीनों एपी में ही होंगे. उसी तरह अगर n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे, तब भी जितने भी नंबर्स होंगे आपस में a से लेकर b तक, वो सभी एपी में ही होंगे. ठीक है, तो क्या लिखोगे? दिस सीक्वेंस विल बी इन एपी. ये सीक्वेंस किसमें होगा? एपी में ही होगा. ठीक है, एपी में ही होगा. अब एक बात बताओ, आपने ए और बी के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया? यहां से यहां तक कितने हैं टोटल? n है. टोटल कितने हैं? n. ठीक है, और n तो अरिथमेटिक मीन है, और दो नंबर पहले से थे a और b थे ना. बताओ मुझे, पहला और लास्ट वाला नंबर तो पहले से ही था, और उनके बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया. तो एक बात बताओ, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? देखो, यहां से यहां तक तो n है और दो ये, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे एपी में कितने टर्म्स होंगे? n+2 टर्म्स होंगे. सो वी विल राइट देयर आर टोटल n+2 टर्म्स. n+2 कैसे आया? क्योंकि n अरिथमेटिक मीन है और दो नंबर पहले से थे, तो टोटल टर्म कितने होंगे? n+2. जैसे कि मान लो आपके पास दो नंबर होता और दो नंबर के बीच में आपको 5 अरिथमेटिक मीन निकालना होता, तो a1 से लेकर a5 तक होता, तो वो 5 और पहले से 2 7 होते. ऐसे ही अगर n अरिथमेटिक मीन है और दो नंबर पहले से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी n+2. और एक बात बताओ, जो हमारा n+2 टर्म होगा, वो हमारा लास्ट टर्म होगा. जो हमारा n+2 टर्म होगा, वो हमारा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा. ठीक है, तो हम जानते हैं ना द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म, दैट इज l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हम जानते हैं. ठीक है, ये तब होता है जब कोई एपी फाइनाइट होती है. जब कोई एपी क्या होती है? फाइनाइट. तो उसका जो nth टर्म होता है, वही उसका क्या होता है? लास्ट टर्म. मान लो किसी एपी में n टर्म्स है, सपोज देयर आर टोटल n टर्म्स, सो द nth टर्म ऑफ द एपी विल बी द लास्ट टर्म. ठीक है,
ये तो आपको पता है सबको कि अगर मान लो किसी एपी में मान लो कोई एपी ऐसा लिखा मैंने A1 A2 A3 डैश 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 AN, और यहां से यहां तक कितने टर्म है, n टर्म्स है। तो इसका जो nth टर्म होगा वही तो इसका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है। एपी जैसे एपी एक सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। तो अगर किसी एपी में n टर्म्स है तो उसका जो nth टर्म होगा वही उसका लास्ट टर्म होगा। इसीलिए तो L इक्वल टू बी a प्लस n माइनस वन डी होता है और an इक्वल टू बी a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि अगर किसी एपी में n टर्म्स होंगे तो उसका nth टर्म ही उसका लास्ट टर्म होगा। तो ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में n प्लस टू टर्म है। सो इसका जो लास्ट टर्म होगा वही इसका n प्लस टू टर्म होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस एपी में जितने टर्म है, कितने टर्म है, n प्लस टू। तो जो n प्लस टू टर्म होगा, मतलब कि जो वैल्यू n प्लस टू टर्म की होगी वही टर्म उसका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो यहां से हम क्या सकते हैं कि here the L will be equal to the an plus 2, an plus 2 लिखो चाहे tn plus 2 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगा इसका वो क्या होगा, हमारा n प्लस टू टर्म होगा। ठीक है, और लास्ट टर्म का क्या है स्टूडेंट, b है। इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, b है। ठीक है, ये देखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, चाहे आप an प्लस टू लिखो या इसको ऐसे ले सकते हो ब्रैकेट में मेंशन करके कि an प्लस टू को हम tn प्लस टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी अगर कोई एपी फाइनाइट है और उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है तो कितने टर्म्स है, n प्लस टू टर्म है। तो इसका जो n प्लस टू टर्म होगा वही इसका क्या होगा, लास्ट टर्म। सो L विल बी इक्वल टू an प्लस टू। L कितना है यहां पर, b। ये लिखना नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है। हम जानते हैं ना कि अगर n टर्म्स होते हैं तो उसका लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ये हम जानते हैं। तो उसी का हम लोग यहां यूज किए हैं। तो इसको चाहे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट इट। ये मैंने बताने के लिए लिखा था। अगर किसी एपी में n टर्म्स होंगे तो उसका nth टर्म भी उसका लास्ट टर्म होता है। तो इसी तरह अगर किसी एपी में n प्लस टू टर्म है तो उसका जो n प्लस टू टर्म होगा दैट विल बी इट्स लास्ट टर्म। सो L विल बी इक्वल टू a n प्लस टू। L कितना है, लास्ट टर्म हमारा b है। a n प्लस टू कैसे निकालोगे आप, a प्लस n प्लस टू माइनस वन डी। जैसे कि an लिखते हो, जब an लिखते हो तो a प्लस n माइनस वन डी होता है। सिमिलरली जब a n प्लस टू लिखोगे तो a प्लस n प्लस टू माइनस वन डी। तो यहां से b जो आएगा, b विल बी a प्लस n प्लस वन डी। ठीक है, यहां से जो b आएगा, b विल बी इक्वल टू a प्लस n प्लस वन डी। कहते हैं ना कि अगर आपको 15वां टर्म निकालता होता है तो आप फर्स्ट टर्म में उससे एक कम डी ऐड करते हो। जैसे कि आपको 15 टर्म लिखना होता है तो आप लिखते हो a प्लस 14 डी। जैसे आपको 10 टर्म लिखना होता है तो आप लिखते हो a प्लस 9 डी। वैसे ही आपको अगर a n प्लस टू टर्म लिखना होगा तो आप लिखोगे a प्लस n प्लस वन डी। तो यहां से d की जो वैल्यू आएगी, यहां से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, यहां से जो d की वैल्यू आएगी, अब देख लेना, a को इधर ले जाओगे तो b माइनस a, और यहां से d की वैल्यू जब निकालोगे तो वो हो जाएगा d इक्वल टू बी माइनस a n प्लस वन। ठीक है, तो यहीं तक करना है आपको, बस ये d की वैल्यू याद होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ d इज b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस वन। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिथमेटिक मीन, n एरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो पहला वाला क्या होगा, अगर मुझे a1 निकालना है मान लो, तो a1 को हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, a1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी ना, तो a1 को हम ले सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं, और d की जगह वैल्यू पुट कर दो। सो a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस वन। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a1। सिमिलरली इफ यू हैव टू कैलकुलेट a2, सो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस टू डी ले सकते हैं, क्योंकि a2 इज द थर्ड टर्म, a2 हमारा थर्ड टर्म ही तो है, और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस टू डी। तो a ही रहेगा, और d की जगह वैल्यू पुट कर दो b माइनस a n प्लस वन। सिमिलरली इफ यू हैव टू कैलकुलेट a3,
then we can write A3. So we can write A plus 3D because A3 is the fourth term of the AP. So A3 can be written as A plus 3D. So its value will be A plus 3 B minus A upon N plus 1. ठीक है, तो इसी तरह आपको अगर बहुत सारे निकालने हैं तो आप उनकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको an निकालना होता तो मान लो आपको यहां क्या निकालना होता, an निकालना होता तो ये हो जाता a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1. ठीक है, देखो जब पहला a1 निकाले थे तो एक डी ऐड हुआ था. a1 मतलब a1 जो है हमारा इस AP का सेकेंड टर्म है तो कितना डी ऐड हुआ, 1d. a2 इज द थर्ड टर्म सो a प्लस 2d. a3 इज द फोर्थ टर्म सो a प्लस 3d. a4 इज द फोर्थ टर्म सो a प्लस 4d. a4 इज द फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. a4 हमारा फिफ्थ टर्म होगा तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d. इसी तरह a5 हमारा सिक्स टर्म होगा तो a प्लस 6d. ये सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो a है ना, पहला टर्म तो फिक्स ही है, दूसरे टर्म से हमारा अरिथमेटिक मीन स्टार्ट हो रहा है. तो a1 इज द सेकेंड टर्म, a2 इज द थर्ड टर्म, a3 इज द फोर्थ टर्म, a4 इज द फाइव टर्म एंड सो ऑन. तो बेसिकली करना क्या है आपको इसमें, ये आपको अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन से. ठीक है, तो आपको इसमें पहले क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है. डी की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. ठीक है, b की वैल्यू होगी b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 और उसके बाद आपको a1 a2 a3 सब निकाल लेना है. ठीक है, इस फॉर्मूले को देख के d निकल जाएगा. उसके बाद आप सीक्वेंस से देखोगे कि a1 हमारा पहला अरिथमेटिक मीन सेकेंड टर्म है तो उसको लिख सकते हैं a प्लस डी. सिमिलरली हमारा दूसरा अरिथमेटिक मीन थर्ड टर्म है तो उसको लिख सकते हैं a प्लस 2d. फिर a3 हमारा फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसी को मैं क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए. आई होप आपने लिख लिया हो. बस इसमें आपको d निकालना होता है और कुछ नहीं. यहां पे जो n है ना स्टूडेंट, n, ये जो इस फॉर्मूले में जो n आया है वो आया है कितने अरिथमेटिक मीन है, वही n है हमारा. ठीक है, जितने आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं वही हमारा n है इस क्वेश्चन में. तो देखो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, इंसर्ट 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP. The resulting sequence is an AP. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 और 24 में 6 ऐसे टर्म को इंसर्ट करो जिससे जो सीक्वेंस मिले वो क्या हो, AP में. तो अगर आप कोई भी टर्म उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा मान लो पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 6 और इनके बीच में क्या बनाना है, 6 नंबर इंसर्ट करना है. तो वो 6 नंबर क्या होने चाहिए, अरिथमेटिक मीन होंगे, तभी वो सीक्वेंस AP में होगा. तो मान लो क्या क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, मतलब कि हमें यही 6 निकालना है. ठीक है, हमें यही 6 निकालना है क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन होंगे तभी ये सीक्वेंस किसमें होगा, AP में होगा. तो मान लो कि क्या है, आर इन AP. अब कितने इंसर्ट किया आपने, 6 इंसर्ट किया. जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो वहां पे कितने इंसर्ट किया था, n इंसर्ट किया था. और उस फॉर्मूले से जो हमारा d आया था स्टूडेंट, जो हमारा d आया था वो आया था b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 आया था. जहां पर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. तो हम लोगों ने कितने इंसर्ट करना है, 6. तो यहां से जो n की वैल्यू होगी वो होगी 6 क्योंकि आपने यहां 6 इंसर्ट किया है. ठीक है, b और a में मैंने बताया था b बड़ा था तो a और b की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग a ले लेंगे क्या, 3 और b ले लेंगे 24 क्योंकि दो नंबर कौन कौन से हैं, 3 एंड 24.
दोनों में से जो छोटा है उसको ए मान लो, बड़े वाले को बी मान लो, और जितने भी नंबर दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हैं, जितने भी अरिथमेटिक मीन आप ए और बी के बीच में इंसर्ट करोगे, वही हमारा क्या होता है, एन इस केस में। सो एन इक्वल टू 6। ठीक है, बस हो गया। पहले आप यहां से क्या निकाल लो, डी। पहले आप डी निकाल लो, तो डी की वैल्यू निकालोगे तो 24 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। जितने अरिथमेटिक मीन या जितने नंबर हम लोग दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हैं, कितने नंबर इंसर्ट किए हैं, 6, तो वही हमारा एन होता है। तो एन विल बी 6, ए विल बी 3, बी विल बी 24। सॉल्व करोगे तो 21/7 विच विल बी इक्वल टू 3। तो यानी कि डी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बस हमें A1 निकालना है। तो A1 क्या होगा हमारा, A1 इज द टोटल कितने टर्म है इसमें स्टूडेंट्स, टोटल इसमें है 8 टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3, सेकेंड टर्म हमारा A1 है। तो A1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, A प्लस डी ना। A1 को क्या ले सकते हैं, A प्लस डी। बस A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू भी है 3, तो 3 प्लस 3 6। तो पहला नंबर निकल गया। ऐसे ही A2 क्या होगा, आप सीक्वेंस में देखो, A2 इज द थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को लिखते हैं हम लोग A प्लस 2D। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। A कितना है 3 और D भी कितना है 3, सो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, सिमिलरली आपको A3 निकालना है। तो A3 इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है। A3 इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है, तो इट विल बी A प्लस 3D। पुट कर दो, 3 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 12। सिमिलरली A4 इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म है। A4 इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म है, सो फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। सो 3 प्लस 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 15। सिमिलरली A5 इस सीक्वेंस का सिक्स टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D। सो 3 प्लस 5 इंटू 3 ये आ जाएगा 18। सिमिलरली A6 इस सीक्वेंस का सेवेंथ टर्म है। A6 जो है वो इस सीक्वेंस का सेवेंथ टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D। सो 3 प्लस 6 इंटू 3 इज 21। तो देखो आपने A मतलब कि दो नंबर यानी कि 3 और यहां पर 24 रहेगा स्टूडेंट, यहां पर 24 रहेगा। ठीक है, 3 और 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करना था, और उन 6 नंबर को हम लोगों ने A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा स्टूडेंट, सीक्वेंस जो हमको मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो AP में है कि नहीं। तो पहला हमारा क्या है 3, उसके बाद आया है A1, देन A2, देन A3, देन A4, देन A5, देन A6, देन 24। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। देखो जब आपने 3 और 24 के बीच में 6 नंबर को इंसर्ट किया, और वो 6 नंबर कौन कौन से थे, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो जो सीक्वेंस मिल रहा है आपको, क्या वो AP में नहीं है, यस दे आर इन AP। इट मीन्स दैट जब भी आप दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर इंसर्ट करोगे, और आपको चाहिए कि ऐसे इंसर्ट करो कि जो सीक्वेंस मिले वो AP में हो, तो जो भी नंबर आप इंसर्ट करोगे वो हमारा अरिथमेटिक मीन ही होगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ही होगा वो हमारा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन 3 और 24 के बीच में हमने कौन कौन से नंबर इंसर्ट किया, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो इस तरह आपको अगर 10 नंबर भी इंसर्ट करने को बोला जाएगा, तो आप पहले D निकाल लोगे। D का फॉर्मूला B माइनस A अपॉन N प्लस 1, जहां पर N क्या है, जितने नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो वही हमारा N है। ठीक है, जितने नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो वो हमारा क्या है, N। ठीक है, और जो भी सीक्वेंस मिलेगा आपको, जो भी सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस AP में ही होगा, और जो नंबर इंसर्ट करोगे वो क्या होंगे, अरिथमेटिक मीन। अगर 10 नंबर इंसर्ट करोगे तो 10 अरिथमेटिक मीन, 2 नंबर इंसर्ट करोगे तो 2 अरिथमेटिक मीन, एंड सो ऑन। आपने पढ़ा है ना रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A प्लस B/2। लेकिन उसके बाद मान लो आपको 10, 15, 20 फाइंड करना होता था, तो आप अलग अलग मेथड लगाते थे ना, डिनोमिनेटर सेम करके, मल्टीप्लाई करके, एंड सो ऑन। तो वही चीज ये भी है। ठीक है, तो AP के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हो चुका है, सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी है।
एक और क्लास मैं इस पे लूंगा और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसके बाद ये एपी हमारा फिनिश हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द रिमेनिंग थिंग्स ऑन एपी वी विल डिस्कस in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.